तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा तथास्तु जाके इंक्वायरी कर लो। तो पापा आए और उन्हें पहले दिन ही तनु मैम मिल गई। वो इतना इम्प्रेस हो गए मैम से, तो ही कॉल्ड एंड सेड कि बेटा यहीं से कर ली, यही कोचिंग सबसे अच्छी है, यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा तेरा। एक जो मदद की उम्मीद आप एक कोचिंग से लगाते हैं, वो सारी उम्मीदों पर तथास्तु खरा उतरा है। यहाँ मेंटर्स अवेलेबल थे, टीचर्स अवेलेबल थे, उन्होंने कभी ऐसा स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशन नहीं रखा, हमेशा हमें ऐसे ट्रीट किया कि जैसे हम खुद उनके फैमिली एक मेम्बर्स। Before Tathastu, I felt that UPSC is very stressful, is very difficult, it is next to impossible. I am in master's 2 years course in Tathastu. So after completing my post-graduation in psychology, I decided to prepare for UPSC. So obviously, like any other aspirant, I was totally lost, and I was very confused because there are so many resources, so many coachings in the market, and I was like, which one to join, what are the benefits, because I was entirely new and my field is again very not connected to the subjects which we study in civil services. So I luckily my friend sent me a YouTube video of Tathastu in which they were at that point of time they were giving free demo classes. So luckily I got to know about it, and most importantly, since I have done my masters, I was a bit skeptical about going for preparation because usually my other friends were going for jobs or either they were going for further higher education. So I was skeptical about taking a gap year. And when I got to know that, okay, in Tathastu, it will be, it will be helpful because I can also do my master's degree. So technically there will not be a gap year between my preparation. Like my preparation time will not be counted as, gap year. जो टीचर, जो फैकल्टीज, जो मेंटर्स मैम ने प्रोवाइड किया, मैम का डायरेक्ट इंटरेक्शन बच्चों के साथ, ऐसा मेरे ख्याल से दिल्ली में मैंने जितने भी मेरे दोस्त अभी तक है, मैंने किसी से नहीं सुना इनका टीचर्स से डायरेक्ट इतना इंटरेक्शन हो कि आप क्वेश्चन लेके सीधे टीचर्स के पास क्वेश्चन, मैम सही है, ऐसा कहीं नहीं है। बच्चे खुद ही चेक करते हैं, बाकी कोचिंग में मॉडल आंसर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा कहीं और जाता तो मैं यूपीएससी में ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता। नहीं, मैं इस इंस्टीट्यूट में 1 ईयर यूपीएससी कोर्स के साथ जोड़ा हूँ। I think I will extend to 2 years. Faculties and mentors are awesome. I will say they are the best because every faculty from the beginning of this coaching, of this course, I found lot like a faculty. They were like the family members. They were very much connected to us. मैंने तथास्तु इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज अभी मैंने जस्ट अपना 12th खत्म किया था, एंड जनरली जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो यूपीएससी की, आप ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हो, बट यहाँ पे मैं अर्ली स्टार्टिंग कर सकती थी विदाउट वेस्टिंग एनी ईयर्स। जैसे कि ईयर गैप की बात आती है कि आप प्रिपरेशन पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, देन आप इतने साल प्रिपरेशन में लगा रहे हो, फिर नहीं हुआ इतने अटेम्प्ट्स के बाद, फिर ईयर गैप समझाना मुश्किल होता है। तो हियर आई गॉट टू स्टार्ट इट फ्रॉम डायरेक्टली आफ्टर 12th। इसके साथ मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रहा है, हम मेंस के आंसर राइटिंग के प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। At this age, I'm only 17 now and I'm able to write answer for mains. I will say that the benefits which Tathastu will provide me, that I will be having a master's degree with the preparation of civil services exam, and this degree will also be helpful in my career making options for teaching lines in academics, and I will be not be unemployed at all. First thing, which is very much a big major issue of the country that the country is facing currently. YouTuber was saying use this, use that, but when I came to Tathastu, I had my interaction with ma'am first on my first day. So she was very kind and very helpful. She helped me in almost every way. I had direct interactions with her in classes. So I also have philosophy as optional. I have seen, in UPSC market, like there are 600 students in one batch, and personally, I really want a very ease environment for any preparation. So I was like, I will not go for offline coaching. I will rather go for some online, or maybe I'll go for self-studies. So I still remember when I first came to the house for inquiry, I asked ma'am the question like how many people will be there in one batch. She was like, okay, it will not be more than 100. And I was like, okay, now I can join. So I joined with a very basic minimal expectations. Ki, okay, it's okay. I just want to prepare so I'll get good direction and all. But when I started here with UPSC,
it made me realize how important it is, in your preparation, that you are very focused, because it is not like you are just reading something, you're gaining knowledge. It is very important because it is a competitive exam. You should know how you can take edge over other people. And here, teachers actually guided us, and since all our teachers are civil servants, it all also made me realize, like, for the first time in my life, that how, like, even civil servants are so grounded in nature. Like, all the teachers are so grounded, so involved in our preparation, like, individually. They're so helpful, they're checking our answers, they're guiding us how to solve MCQs, which was something which I never heard, because my so many friends of mine are also preparing for UPSC. I've never heard any of my friends saying, that the teachers are very approachable, they're very grounded. That is the one thing which helped me a lot. And obviously, providing a good direction is very important to clear any competitive exam. I thought philosophy was very boring subject, but the moment I joined the classes first day, I found it very interesting. My perspectives changed completely. तो हम फिर कहीं और कहीं पे भी पता नहीं क्या, आई केम हियर, और यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गई अपनी स्टडीज़ को लेकर के, मोर फोकस्ड। और मतलब यहाँ पे इतना स्ट्रेस फ्री माहौल है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत स्ट्रेस में ही रहना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाते हैं तो मेंटोर्स आके हमसे बात करते हैं कि थोड़ा नॉर्मल रहो, आराम से पढ़ो और हो जाएगा, डोंट वरी, सब अच्छे से ही होगा, और स्माइल करते रहो। ये वो हमें ज़रूर कहते हैं। और यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हम किसी भी टीचर से जा कर के पर्सनली बात कर सकते हैं। इवन तनु मैम और जो भी हमारे टीचर्स आते हैं वो ऑब्वियसली सारे ऑफिसर्स होते हैं, बट स्टिल हमें यहाँ पे छूट है कि हम सारे टीचर से जाके खुद मिल कर के अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। और जो भी ऐसे कि जो भी टीचर्स हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, वो पर्सनली हम पर ध्यान देते हैं कि हम कैसा पढ़ रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। हमें रेगुलरली फीडबैक मिलते हैं, हमारे वीकली टेस्ट होते हैं। हम अपने मैनेजमेंट से भी जाके कह पाते हैं कि सर हमारा शेड्यूल थोड़ा टाइट हो रहा है और थोड़ा ईज़ी कर दीजिए। तो यहाँ पे चीज़ें जो है ना बहुत एक्सेसिबल हैं, और हम हमारा मेंटल जो है ना स्ट्रेंथ, उसको ध्यान में रख कर के ही सब चीज़ें बनाई जाती हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी, और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है हमें यहाँ पे, मोटिवेशन मिलती है यहाँ पे। हमें सारे टीचर्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि घर जाके मन नहीं कर रहा कि नहीं पढ़ेंगे आज, मतलब घर जाके, मतलब रूम पे जाके हमेशा लगता है कि पढ़ लेते हैं यार, कल कल मैम पूछेंगी क्या पढ़ा था। तो मतलब बहुत मोटिवेट होते हैं हम यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगी तो मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा तथास्तु से। एवरीवन, मेरे को तथास्तु के बारे में मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने बताया था, तो मैंने यहाँ पे एक डेमो क्लास लेने का सोचा। मैंने सोचा ट्राई करते हैं, देखते हैं। मैं बहुत नई थी इस फील्ड में, क्योंकि मैंने अपनी कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों साइंस के सब्जेक्ट से करी है। मैंने 10 दिन की डेमो क्लास ली, वहाँ पे मेंटर्स थे, सबसे आगे बात करी। तो उस बार जीवन में पहली बार मेरे अंदर ये विश्वास आया कि हाँ, मैं भी कर सकती। फिर मैंने यहाँ ज्वाइन करा। फिर यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआती बैच था वो एनसीईआरटी मॉड्यूल का बैच। 6th से सारी एनसीईआरटीज पढ़ाएगी। मेरे को हमेशा से ये भय था कि कहीं मैं आर्ट्स वाले बच्चों से पीछे ना रह जाऊँ। तो जब वो 6th से सारी एनसीईआरटीज पढ़ाई गई, जब हमारे टेस्ट हुए और जब मैंने अपना स्कोर देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं भी उनके बराबर ही हूँ, और शायद मेहनत करूँगी तो सबसे आगे भी निकल पाऊंगी। तो ये जो एकदम शुरुआत से जो एनसीईआरटी बैच स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर हमने 6th से लेकर 12th तक की सारी एनसीईआरटीज पूरी कर ली, इसने मेरे को एक बहुत आत्मविश्वास दिलाया कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, चाहे मेरा बैकग्राउंड अलग हो या फिर सेम हो। मेरा जो कोर्स है वो है बीए एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि सारे बच्चे डीयू से बीए करना चाहते हैं, पर मैंने अपना बीए एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से चुना, क्योंकि इसके कई फायदे हैं। सभी बच्चे जो अपनी ये तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं, पर मैंने अपनी ये तैयारी ग्रेजुएशन के साथ ही स्टार्ट करी। हमारा कोर्स इस तरह डिज़ाइन है कि 3 साल के बीए होते के साथ ही हम पूरी तरह से परीक्षा में बैठने के काबिल हैं, और हम परीक्षा दे सकते हैं। हमारा कोर्स ऐसा डिज़ाइन करा गया है कि इन्हीं 3 सालों में मैं अपनी यूपीएससी की सारी तैयारी कर लूँगी, और मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। हमारे इस बीए प्रोग्राम में हमारी बहुत एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिससे हमारा पर्सनालिटी डेवलप हो सके। बहुत सारा ऐसे ही डिज़ाइन करा गया है, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन, प्रेजेंटेशन, क्विज। इस तरह से सब कुछ डिज़ाइंड है कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो ग्रूम हो सके, हम वो एक एस्पिरेंट बन जाए जो यूपीएससी को चाहिए। हर टीचर इतने पोलाइटली हमसे बात करते हैं। हमारे मेंटर हमसे एक 1-to-1 सेशन लेते हैं हर हफ्ते। मेरे मेंटर ने मेरे को इतनी बार विश्वास दिलाया कि मैं भी कर सकती हूँ, चाहे मेरा कुछ भी बैकग्राउंड हो। मेरे जो भी डर थे, जो भी भय था,
सबको मेरे मन से निकालने की उन्होंने पूरी कोशिश करी है। हमें रोज़ आंसर राइटिंग मिलता है, हर क्लास के बाद हमारा एक टेस्ट होता है, हर चीज़ डिज़ाइंड है। They are super experienced teachers. I do not think that if I had joined any other coaching, I would have continued my preparation. Because I would have given up then and there because of the amount of students studying at the same time and the like continuous classes and batches. So I connected with the teachers at a personal level, and I found it very helpful. I was helped in my every step, and my thumb still aches because I've written so much in the institute itself. तथास्तु आईसीएस चूज़ करने से पहले हमने कई बार सोचा कि यूपीएससी करना है, कैसे करना है। बहुत सारे तरीके थे करने के लिए और बहुत सारा कन्फ्यूजन था हमारे दिमाग में कि हम कैसे कर सकते। डिग्री लेके करना 3 साल बाद, ग्रेजुएशन के बाद करना, वो एक नॉर्मल हमेशा से ऑप्शन रहता है। बट पहली बार तथास्तु की वजह से हमें एक ऐसा ऑप्शन मिला है कि हम डिग्री के साथ अपना एक कर सकते। चूज़ करने से पहले बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे कि गाइडेंस नहीं मिलेगा, अगर हम डिग्री की बात करते हैं या कॉलेज के साथ करते हैं तो कौन हमें गाइड करेगा, सिलेबस कैसे कवर करेंगे, मटेरियल्स क्या प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि इतना डाइवर्स हो चुका है ये यूपीएससी का फ्रेटर्निटी कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे एडवाइज़र्स हैं जो और सब अपनी अपनी बातें बताते हैं। सबका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, सबका अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। इतनी स्ट्रैटेजीज़ में हमें चूज़ करने में इतना कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या चूज़ करें, हम किसकी बात मानें। बट यहाँ तथास्तु आने के बाद हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक डायरेक्शन मिला कि हम कैसे इस अपने यूपीएससी के कोर्स को अकम्प्लिश कर सकते हैं या फिर इस रास्ते में हम कैसे सही से चल सकते हैं। चाहे सिलेबस की बात हो, चाहे उसको परसीव करने की बात हो, चाहे क्वेश्चंस करने की बात हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, कुछ भी हो। और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट कि कॉमर्स के ग्रेजुएशन करने के बाद आर्ट्स का कोई बेस नहीं है तो हमें दिक्कत होगी आर्ट्स पढ़ने में। हमें बिल्कुल भी एक समय में ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें ऐसी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि टीचर्स ने इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखा कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बेस नहीं है तो बेस। उन्होंने बेस करवाया, उन्होंने कॉन्सेप्ट्स करवाए, जो उनसे हो सकता था उन्होंने सब करवाया। और बीए के साथ और ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी कि हम अपना ग्रेजुएशन साथ में कर सकें बीए की डिग्री करने के बाद, क्योंकि हमें जनरली एक बीए का कोर्स कहीं और कॉलेज से करना पड़ता और अगर हम वैसा करते तो हमें फिर वहाँ के एग्जाम्स, वहाँ के अटेंडेंस, वहाँ की चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता, जो हमारे लिए एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करनी। बट वो यहाँ आने से हमारे लिए एक ईजी पड़ गया। और यहाँ आने के बाद भी जब हमें एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही थी तो यहाँ मेंटर्स अवेलेबल थे, टीचर्स अवेलेबल थे। उन्होंने कभी ऐसा स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशन नहीं रखा, हमेशा हमें ऐसे ट्रीट किया कि जैसे हम खुद उनके फैमिली एक मेम्बर्स। जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म होता है, हमारा अराउंड 50 MCQs का क्वेश्चन पेपर होता है बिकॉज टू डू द यूनिट टेस्ट वीकली बेसिस पे, वो भी और सरप्राइज टेस्ट भी होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं डेली बेसिस पे। बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है एंड लाइक टीचर्स इतने सपोर्टिव हैं। द ओनली थिंग दे वांट फ्रॉम अस इज आवर सपोर्ट, कि हम अच्छे से पढ़ाई करें। सारे मटेरियल्स वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमें कुछ इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। करंट अफेयर्स पूरा प्रॉपर तरीके से कवर हो रहा होता है, सब कुछ उसी तरह से चल रहा है जैसे चलना चाहिए। और अगर हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी कम होती है तो टीचर हमें समझाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। हम चाहे तो क्लास में कितनी बार भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। हमारे पास टीचर्स के नंबर्स हैं कि हम उनसे पूछ सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ हमें मेहनत करने की। और मेरा ये जो एक फ़ैसला था कि मैंने तथास्तु ज्वाइन करा, इसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। Another thing that I would like to add कि यहाँ पे हम zombies नहीं हैं, we like to study, we enjoy studying। ऐसे जैसा तनु मैम के वर्ड्स हैं that do not become zombies, हम खाने पीने जाते हैं, enjoy करते हैं, and then when we study seriously, and then when we enjoy properly।